ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਗੁਰਮਤਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਮਕਸ਼ ਭੇਟ ਕਰਾਂ। ਪੇਸ਼ਤਰ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਿਆਰੇ ਇਨ ਬਿਦ ਮਿਲਣ ਨ ਜਾਈ, ਮੈਂ ਕੀਏ ਕਰਮ ਅਨੇਕਾ। ਹਾਰ ਭਰਿਓ ਸੁਆਮੀ ਕੇ ਦੁਆਰੇ, ਦੀਜੇ ਬੁੱਧ ਵਿਵੇਕਾ। हे प्रभु, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ, ਤੂੰ ਉਹ ਬੁੱਧ ਦੇ ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਮੈਂ ਐਸਾ ਕਰਾਂ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕਬੂਲ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਰਮ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਮੈਂ ਕੀਏ ਕਰਮ ਅਨੇਕ, ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਕੀਏ ਕਰਮ ਅਨੇਕ, ਬਹੁਤ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਰਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਹੀ ਕਰਮ ਦੇ ਚੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਸੁਗੰਧ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਕਿਸੇ ਹੀ ਕਰਮ ਦੇ ਚੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਰਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਮ ਦੇ ਚੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਛਾਪ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਮ ਦੇ ਚੋਂ ਰੱਬੀ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪਰਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਮੈਂ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬੋਲ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਨਿਮਾਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆਨੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਆਨੀ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਾਕਰ। ਇਹ ਇੰਝ ਕਹਿ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਦੇ ਹੀ ਦੋਸਤ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਕੱਠੇ ਵਿਚਰਦੇ ਰਹੇ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਚੰਗੇ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਗਿਆਨੀ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ, ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੀਕਾ ਲਿਖਿਆ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਛਾਪਿਆ। ਦੂਸਰਾ, ਇਹ ਹਿਕਮਤ ਦੇ ਵੀ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ। ਕਈ ਗੁਣ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰਵਨ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਸੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਮਾਹੌਲ 'ਚੋਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਖਿਆਲ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਆਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਿਆਰੇ ਇਨ ਬਿਦ ਮਿਲਣ ਨਾ ਜਾਈ, ਮੈਂ ਕੀਏ ਕਰਮ ਅਨੇਕਾ। ਹਾਰ ਭਰਿਓ ਸੁਆਮੀ ਕੇ ਦੁਆਰੇ, ਦੀਜੇ ਬੁੱਧ ਵਿਵੇਕਾ। हे ਪਿਆਰੇ, ਇਸ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਜੋ ਤੂੰ ਕਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਔਰ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਕਰਮ ਤੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਔਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੁਰਾਨ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰਮ ਤੇ ਬੜੇ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰਮ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੀਤੇ, ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਰਮ ਤੇ ਬੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਛਾਪ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਰਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਆਚਰਣ ਦੇ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਟਪਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਇਸ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ। ਪਿਆਰੇ ਇਨ ਬਿਦ ਮਿਲਣ ਨ ਜਾਈ, ਮੈਂ ਕੀਏ ਕਰਮ ਅਨੇਕਾ।
अनेका लफ्ज़ जो वरते है इतने कि गिण भी नहीं सकते, इन्ने कीते धार्मिक कर्म जीवन भर आखिर एक धार्मिक मनुख कर्म तो करता ही है। मैं किए कर्म अनेका हार पर्यो स्वामी के द्वारे दीजे बुद्ध विवेका। हे प्रभु अपनी बुद्ध दे मुताबिक ते मैं बहुत कीता, दान भी कीता, ज्ञान भी बड़ा इकट्ठा कीता, कथा कीर्तन भी बड़ी सुनी है और कथा कीर्तन कीता भी बड़ा है, पाठ बहुत सुने हैं ते पाठ कीता भी बड़ा है, सेवा भी बहुत कीती है, दान भी बड़ा दिता है। गुस्ताखी माफ क्या सीने ते हथ रख के कह सकते हैं कीते हुए दान ने भगवान मिला दिता है, कीती हुई सेवा करके कोई प्रभु की झलक मिली है, सुने हुए पाठ करके या सुनाए हुए पाठ करके परमात्मा की कोई महक आई, सुनी हुई कथा करके या कीती हुई कथा करके, सुने हुए कीर्तन करके या सुनाए हुए कीर्तन करके कुछ खबर मिली। अगर चलो हर जगह नहीं तो हुण महाराज की हजूरी च इतनी सच्चाई ते कबूल करन तो संकोच नहीं करना चाहिए। ना दान करके पता चले ना ज्ञान करके, ना कथा करके कोई खबर मिली, ना कीर्तन करके, ना सेवा करके कुछ पता चले है, ना पुण्य करके। तो फिर किवें तेरी खबर मिले? जो जो असीं कीता इहदे नाल ते गल नहीं बनी, नहीं बनी। मैं फिर अर्ज करा, कर्म ते धार्मिक यही ने जो कीते जा रहे हैं, और किसी भी कर्म ने कोई खुदा की खबर दी होवे, किसी कर्म ने परमात्मा की छाप जिंदगी दे छोड़ी होवे, किसी कर्म ने गुरु की महक पैदा की होवे जिंदगी च, ऐसा प्रतीत नहीं होता। मैं किए कर्म अनेका, बड़े कीते, बड़े कीते, थोड़े नहीं। हार पर्यो स्वामी के द्वारे दीजे बुद्ध विवेका। हे प्रभु थक हार के मैं तेरी शरण आया, क्योंकि इतनी ते मैनू समझ आ गई जो मैं कीता इस नाल ते गल नहीं बनी, नहीं बनी। या ते मनुख कह देवे मेरे दिते दान नाल भगवान मिल गए तो चलो गल मन लेंदे, मेरे कट्ठे कीते हुए ज्ञान नाल भगवान प्रगट हो गए तो चलो ये ज्ञान उसकी कीमत हो गई, मेरी कीती हुई सेवा करके गुरु प्रगट हो गया चलो सेवा कीमत हो गई, मन लेने। सुने हुए कीर्तन करके किधरे मन नू निराश भी ना कर लेना। ते इत्थे लॉन्ग आइलैंड पिछे जद मैं 3 दिन कथा की थे, एक सज्जन मैनू कहन लगा, बड़ा सियाणा, और सेठी साहब उन्होंने कोल ही बैठा सी, कीरत सिंह उन्होंने मैनू कहन लगा थोड़ा थल्ले लैके गल नहीं की जा सकती। मैं कहा थल्ले लैके गल होई तो वह परमात्मा की है ही नहीं, वो तो ईश्वर की है ही नहीं। तो थल्ले लैके जिहड़ी गल है वो तो सारा दिन चलती रहिंदी है, घर दे चलती रहिंदी है, बाजार दे चलती रहिंदी है, हर थां ते चलती रहिंदी है। जे थल्ले लैके गल होई कहने लगे फिर इस नाल ते तालमेल नहीं बैठता। तो मैं कहा फिर जगत दे ये अवतारी पुरुष, खैर अगों तो उसने गल नहीं की थी, पर मैं विवेकानंद नूं पढ़िया सी ते वो कहंदा है ये जिहड़े अवतार ने ना समय तो पहले आ जाते हैं, जद आंदे ने इन्हां नूं कोई सुनन वाला नहीं होंदा, समझण वाला नहीं आउंदा। ते जद किधरे कोई एक कद सुनन वाला समझण वाला पैदा होंदा उदों होंदे नहीं। मैं हैरान होया उस महापुरुष दे बोल पढ़ के।
ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਵਤਾਰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਏ ਨੇ, ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੂਲੀ ਤੇ ਚਾੜਿਆ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੰਦ ਤੋੜੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੰਦ ਤੋੜੇ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਚਿਣਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਭਗਤ ਸਿੱਖ ਦੇ ਬੰਦ-ਬੰਦ ਕੱਟੇ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਤੋ ਕਿਆ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਯਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹਿੰਸਾ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਕਿਸੇ ਚੋਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਢੰਗ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਸੇ ਦੁਰਾਚਾਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਢੰਗ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਕਾਤਲ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਢੰਗ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਆਈ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬੰਦ-ਬੰਦ ਘਟੋ, ਐਸਾ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਕਸੂਰ ਕੀ ਸੀ? ਵਕਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਬੋਲ ਇਤਨੇ ਉੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਤਨੇ ਉੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਨੀਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਹੋਣਾ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ। तो फिर कोशिश करते हैं, रब तू अपना सिर जरा नीवा कर, तू नीवा हो। तो जी परमात्मा ही नीवा हो गया तो फिर परमात्मा साडे वर्गा, फिर पूजन की की लोड़ है, फिर सजदा करन की की लोड़ है। शेख सादी साहब कहते ने, ऐ बंदे जे तू चाहना है कि मेरा सिर तेरे कदमां ते होवे, तो कम से कम तेरे कदम जमीन तो इतने ते उच्चे होने चाहिए जितना मेरा सिर है। मैं लफ्ज़ फिर दोहरावां, ऐ बंदे जे तू चाहना है मेरा सिर तेरे कदमां ते होवे, कम से कम तेरे कदम इतने ते उच्चे होने चाहिए जितना मेरा सिर है, नहीं तो मैं क्यों झुकां, की लोड़ है। पर जितना सिर उच्चा है इतने कदम नहीं, उसके कदम ते 7 आसमानां तो भी उच्चे है, बहुत बुलंद ने, इतने उच्चे ने कि मनुख दे अहंकार नूं कोई थां ही नहीं मिलती, ठिकाना ही नहीं मिलता। मैं कीए कर्म अनेका, हे प्रभु किहड़े कर्म नाल मिलेगा। दान कर करके मैं थक गया, ते ज्ञान इकट्ठा कर करके भी मैं थक गया, सेवा कर करके भी मैं थकिया, कीर्तन सुन सुन के भी थकिया। सच्चाई ये गल वखरी है, भावें कोई कबूल करे भावें ना। पाठ कर करके भी मैं थकिया, ते पाठ सुन सुन के भी मैं थकिया। गुरुद्वारे आ के भी मैं थक गया। बाबा फरीद कहते चब्बण चलन रतन से सुनियर बह गए। कहता हे प्रभु हुण ते दंद भी गए, चब्बण चलन हुण ते पैर भी गए, मैं चल भी नहीं सकता। रतन हुण ते जबान भी गई, मैं सही बोल भी नहीं सकता। से सुनियर बह गए, हुण ते कन भी सुननों रह गए। इंज लगता है ये जीवन की बाजी भी खाली जाएगी, खेड नहीं बननी। गए मेरे कन, गईयां मेरियां अखां, गए मेरे पैर, तेरा दामन पकड़ सका हुण ते हथ भी कंबदे ने। बाबा फरीद बिरध अवस्था जदों होई है उदों इन्हां ने कहे अर्थां दे असीं होर अर्थ कर लैंदे आ कि बाबा जी कह रहे ने, ऐ कां अजे तू मेरियां अखां ना खा, सारा मास खा लिया सी। खेड ये नहीं सी, बिरध हो गए सन ते बुढ़ेपे दा कां हुण अखां दी जोत नूं मध्यम कर रहा सी। जिवें कन्न चले गए, पैरां दी शक्ति चली गई, हत्थां दे काम करन दी ताकत चली गई, मूंह दे चों दंद चले गए, तो बुढ़ेपे दे प्रवाह करके अखां दी जोत घट रही सी। उस वक्त फरियाद की, ऐ बुढ़ेपा कम से कम मेरी अखां ते रहन दे, अजे ते मैं खुदा नूं देखिया ही नहीं।
अज तो मैं उसकी झलक देखी ही नहीं, ये भी जान लगियां ने, अजे तो मैं करिश्मा देखिया ही नहीं। दरअसल ये दो अखां बंद होवन, इस तो पहले एक तीजी अख खुलनी चाहिए जिस नाल परमात्मा दिखाई देंदा है। पर होंदा कि वो तीजी की खुले, दो भी बंद हो जाती। कर्म करदियां करदियां कर्म की सफलता यही है, वो तीजी अख खुले। ये दो बंद हो गई, तीजी ते खुली कोई नहीं। बाबा फरीद इसका जिक्र पे कर देना, बुढ़ेपे ने मेरे पैर नाकारा कर दिते, इन्नी निक्की जंगीए थल डूंगर बोयम। इन्ना छोटियां जंगां नाल, पैरां नाल, मुल्तानी भाषा जंगां कहंदे ने पैरां, इन्ना निक्कियां निक्कियां जंगां नाल मैं ते पहाड़ां ते चढ़ जांदा सी, डूंगरां दी बुलंदी नूं नाप लैंदा सी। इन्नी निक्की जंगीए थल डूंगर बोयम। अज फरीदे कूजड़ा सैकों थे, कोल पे कूजा। वजू करना है, नहीं चुक सकता, कोल पे है मेरे। पहाड़ां ते चढ़न वालियां ये लत्तां दो कदम नहीं चल सकदी। बुढ़ेपे ने मेरे पैर खा ले, बुढ़ेपे ने मेरे दंद ले लेने, से सुनियर बह गए, बुढ़ेपा मेरे कन भी ले गए, उच्चा सुनन लगते हैं। बुढ़ेपा मेरी जबान भी खा गया, लड़खड़ा गई है जबान। तो तरला पै लैंदे ने, ऐ बुढ़ेपा मेरियां अखां रहन दे। जोत घटन लग पई सी, रोशनी घटन लग पई सी। अजे तो मैं खुदा नूं देखिया ही नहीं। ते खुदा नूं देखना की है? सारा संसार जितने चिर तक खुदा दा रूप ना दिखाई दे, कोई खुदा दे दर्शन नहीं। कहंदे ने सानू गुरु नानक दे दर्शन होए, सानू कृष्ण दे दर्शन होए, इस तरह के भगत मैनू बहुत मिले ने, लेकिन आम बंदियां नाल व्यवहार उन्हां दा बहुत गंदा। उंज कृष्ण जी दे दर्शन होए, सानू गुरु नानक दी झलक मिली है, और उंज बंदे नाल व्यवहार इंज जिवें कसाईयां वर्गा, उंज गुरु नानक दी झलक मिली है नहीं। जितने चिर तक सारा संसार गुरु दा रूप ना दिखाई देवे, कोई दर्शन नहीं। ये विस संसार तुम देख दे, हर का रूप है, हर रूप नदरी आया। जो दिसे सो तेरा रूप, गुण निधान गोविंद अनूप। भाई साहब भाई नंद लाल कहंदे ने, ब्राह्मण मुश्ताक के बुत, जाहिद फिदाए खान का। जा रहे हैं मस्जिद विच मुसलमान खुदा दी झलक वेखण वास्ते, जा रहे हैं मंदिर दे च हिंदू भगवान दा रूप वेखण वास्ते। ब्राह्मण मुश्ताक के बुत, जाहिद फिदाए खान का। हर कुजा जामे मुहब्बत दीदाम सरशारस्त। मैं ते जिधर देखदा सारा संसार ही खुदा दी मस्जिद बन गया, सारा संसार ही भगवान दा घर है। किहड़े मंदिर दे जावां, सारा संसार ही हरि मंदिर है। किहड़ी मस्जिद दे जावां, ये सारा विश्व मंडल ही खुदा दी मस्जिद है। भगत कबीर ने इसनूं दूसरे ढंग नाल भी बयान किया है, देही महजिद मन मौलाना, सहज नमाज गुजारे। किहड़ी मस्जिद दे जाना है, देही मस्जिद बन गई है। किहड़े मौलवी दे पिछे नमाज पढ़नी है, मानी मौलवी बन गया। और जिस दिन एक काया मस्जिद बन जाए, सारा संसार मस्जिद बन जाता है। जिस दिन एक काया देवल बन जाए, सारा जगत देवल बन जाता है। कायो देवा, कायो देवल, कायो जंगम जाति। कबीर कहते मेरी काया मस्जिद बन गई है, पीपा कहते मेरी काया हरि मंदिर बन गई है। हरि प्रगट हो गया, हरि मंदिर, खुदा प्रगट हो गया, मस्जिद। देही मैजिद मन मौलाना, सहज नमाज गुजारे। तो खैर मुख्तसर में अर्ज करा,
ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਰਮ ਬਹੁਤ ਕੀਤੇ ਨੇ ਔਰ ਰੋਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਫਰਮਾਨ, ਪਿਆਰੇ ਇਨ ਬਿਦ ਮਿਲਣ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੇ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਮੈਂ ਕੀਏ ਕਰਮ ਅਨੇਕਾ। ਹੁਣ ਅਨੇਕਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਤਫਸੀਲ ਪੜ੍ਹੀ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ, ਤੇ ਪਾਠ ਵੀ ਹੈ, ਪੂਜਾ ਵੀ ਹੈ, ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਰਟਨ ਵੀ ਹੈ, ਦਾਨ ਵੀ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਵੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਹੈ। ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਿਓ ਅਰ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰਿਓ, ਨਿਵਲ ਭਯੰਗਮ ਸਾਧੇ, ਪੰਜ ਜਨਾ ਸਿਉ ਸੰਗ ਨਾ ਛੁਟਕਿਓ, ਅਦਕ ਅਹਮ ਬੁਧ ਬਾਧੇ। ਪਿਆਰੇ ਇਨ ਬਿਦ ਮਿਲਣ ਨਾ ਜਾਈ, ਮੈਂ ਕਹੀਏ ਕਰਮ ਅਨੇਕਾ ਹਾਰ ਪਰਿਓ, स्वामी के द्वारे दीजे बुद्ध विवेका, मौन भयो कर पाती रहो, नगन फिरो बन माई तट तीरथ, सब धरती भर में दुबदा छुटके नाई। सारे कर्म जो धार्मिक जगत विच कीते जांदे शब्द विच गिणती कर दे। ऐ भी मैं कीता है, ऐ भी मैं कीता है, ऐ भी मैं कीता है, ऐ भी मैं कीता है। किसी कर्म विचों तेरी छाप नहीं मिली, किसी कर्म विच मैनू रस नहीं आया, ਕਿਸੇ ਕਰਮ ਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਦੇ 'ਚ ਇੰਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰਹਾਉ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੀਏ ਕਰਮ ਅਨੇਕਾ। ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕਰਮ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਕਰਮ ਹੈ? ਸਤਸੰਗ ਦੇ 'ਚ ਆਉਣਾ ਕਰਮ ਹੈ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਕਰਮ ਹੈ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨਾ ਕਰਮ ਹੈ, ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਨਾ ਕਰਮ ਹੈ, ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਰਟਨ ਕਰਮ ਹੈ, ਘੱਟ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕਰਮ ਹੈ, ਇਸੇ ਨੂੰ ਮੌਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਮ ਆਵਾਜ਼ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਾ ਬੀਨੀ ਖਜਲ। ਸ਼ੇਖ ਸਾਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਘੱਟ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹਰਗਿਜ਼ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੇ ਬਥੇਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦਾ। ਕਮ ਆਵਾਜ਼ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਾ ਬੀਨੀ ਖਜਲ, ਜਵੈ ਮੁਸ਼ਤ ਬਿਹਤਰ ਯਕ ਤੋਦੈ ਗਿਲ। ਗਿਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ। ਜਵੈ ਜੌ ਦਾ ਦਾਣਾ। ਸਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਖ ਭਾਵੇਂ ਜੌ ਦੇ ਦਾਣੇ ਵਰਗੀ ਹੋਵੇ, ਛੋਟੀ ਸਹੀ, ਪਰ ਹੋਵੇ ਮੁਸ਼ਕ ਕਪੂਰ ਵਰਗੀ। ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਮਹਿਕ ਹੋਵੇ, ਸੁਗੰਧ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਕਿ ਤੂੰ ਬੋਲੇ, ਤੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਚੱਲੇ ਔਰ ਤੂੰ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਢੇਰ ਲਾ ਦੇਵੇਂ ਔਰ ਸਾਰਾ ਢੇਰ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੋਦਾ ਹੋਵੇ। ਜਵੈ ਮੁਸ਼ਕ ਬਿਹਤਰ ਯਕ ਤੋਦੈ ਗਿਲ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਖ, ਭਾਵੇਂ ਜੌ ਦੇ ਦਾਣੇ ਵਰਗੀ ਛੋਟੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਹੋਵੇ ਮੁਸ਼ਕ ਕਪੂਰ ਵਰਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ 'ਚ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਛੱਡ, ਉਹ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੋਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਵਾਕ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬੋਲ, ਕੁੰਗੂ ਕੀ ਕਾਇਆ ਰਤਨਾ ਕੀ ਲਲਤਾ, ਅਗਰਵਾਸ ਤਨ ਸਾਸ। 68 ਤੀਰਥ ਕਾ ਮੁਖ ਟਿੱਕਾ, ਤਿਤ ਘਟ ਮਤ ਵਿਗਾਸ। ਐਸਾ ਮਤ ਦੇ 'ਚ ਵਿਕਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਖੇੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਖੁਸ਼ੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਾਇਆ ਕੇਸਰ ਵਰਗੀ ਹੋ ਗਈ। ਕੇਸਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਕੇਸਰ ਦਾ ਟਿੱਕਾ ਲਾਣਾ। ਦੂਰ ਕਿਉਂ ਜਾਈਏ? ਇਸ ਨੂੰ ਫੋਕਾ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਨਾ ਸਮਝ ਲੈਣਾ, ਵਿਅਰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸਮਝ ਲੈਣਾ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ 5 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਿਲਕ ਲਾਇਆ, ਤਿਲਕ ਤੇ ਕੇਸਰ ਦਾ ਹੀ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 'ਚ ਕੇਸਰ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਮਾਰੇ ਸੀ। ਕੇਸਰ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਪੱਤਰਿਆਂ ਤੇ। ਕੇਸਰ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਅੰਗ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕੋਈ 50 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਹੋਰ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ 'ਚ ਪੰਪੋਸ਼ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਸਬਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ। ਦਾਸ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬੜੇ ਤਜਰਬੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਬਾਉਣ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸੁਣਿਆ ਸਪੇਨ ਦੇ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਰਫ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ 'ਚ, ਔਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਸਬਾ ਪੰਪੋਸ਼, ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।
केसर एक फुल, उसदे जिहड़ा मकरंद है वह केसर है और काफ़ी महंगा। प्राचीन काल तो इसे दा ही टिक्का देंदे रहे इत्थे मस्तक दे और ये टिक्का प्रतीक सी तीजी अख दा। तीजी अख इत्थे ही है, दो अखां दे विचकार इत्थे जद खुलदी इत्थे ही खुलदी है, अंदर खुलदी है। मैं फिर अर्ज करा, विज्ञान आखेगा सी ते खोपड़ी फाड़ के देखे, इस तरह की कोई अख नहीं लगी। ते विज्ञान तो यह भी कह सकता सी सारे शरीर की चीर फाड़ करके देखी, आत्मा का कोई पता नहीं चलिया, खून हथ लगे, हड्डियां हथ आई, मिंज हथ आई है। चलो आत्मा की तो गल छड्डो, एक मनुख रागी है, उसके अंदर राम कली है, सोरठ है, बिलावल है, और इस तो इलावा वो सारे राग रागणियां दा माहिर है, सब उसके अंदर है। तो कोई आके जरा चीर फाड़ करके देख लेने राम कली कित्थे है, देखिए जरा सोरठ केड़ी थां ते पे, हथ आएगा? कोई बिलावल की झलक मिलेगी? खून हथ आएगा, लेकिन कोई कह सकता है इसके अंदर बिलावल नहीं है, तो सुना रहे सी किस तरह कह दिए बिलावल नहीं है उसके अंदर? ਉਹਦੇ अंदर सोरठ भी है, बिलावल भी है, सोही भी है, जयजावंती भी है, माज भी है, आसा भी है, पर चीरा फाड़ी करके देखांगे तो हथ नहीं आएगा, पर है तो सही अंदर। संगीतकार दे अंदर संगीत है, पर चीरा फाड़ी करिए विज्ञानक ढंग नाल ते पल्ले कुछ नहीं पैंदा, कुछ भी नहीं पैंदा। किसी हद तक सनातनी ऋषियों ने एक सोहना उदाहरण दिता है, नटराज। परमात्मा नटराज है, नृतकार है। नृत जिवें नृतकार दे अंदर है, नृतकार तो अलग नहीं है। और ये सारा संसार की है, एक नृत हो रहा है, उस नटराज का नृत है। और गुरु नानक ने तो सारा सोना खुलासा किया है, घड़ियां सब्बे गोपियां पैर कन गोपाल, गहने पाउण पाणी बैसंतर चंद सूरज अवतार, सगली धरती माल धन वर्तन सर्व जंजाल। ये तो सारा नृत हो रहा है, सारा ब्रह्मंड नच नृत कर रहा है, नाच हो रहा है। परमात्मा नटराज है, तो नृत नूं नटराज तो अलग किस तरह करोगे? और नटराज तो नृत प्रगट होंदा है, नृत नूं नटराज तो अलग नहीं कर सकते, संसार नूं निरंकार तो अलग नहीं कर सकते, सब उसका नृत है, नाच है। नाचंती गोपी जना, भगत नामदेव जी महाराज भी कहते, ये तो एक नाच हो रहा है, नृत हो रहा है। तो खैर मैं अर्ज करा, दिखाई दे जाता है नृत उस तीजी अख नाल, इन्हां दोआं नाल नहीं। इकबाल तदी कहते ने, दिले भी नाम भी कर खुदा से तलब, कि आंख का नूर दिल का नूर नहीं। अखां दा नूर ओ नूर नहीं कि खुदा दिखाई दे जाए। ये तो पशुआं कोल भी हैगियां, ये तो पंछियां कोल भी हैगियां। दुआ करदा पे तो ये दुआ भी करया कर, और वाकई दुआ कदी खाली नहीं जाती। खुदा मंजूर करता है दुआ जब दिल से होती है, दिल तो निकली हुई गल खाली नहीं जाती। ये भी मैं अर्ज कर दें, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है। डॉक्टर मोहम्मद इकबाल, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। भावें पंख कोई नहीं, पर वो सत आसमाना तो भी अगे लंघ जाती है अगर दिल चो निकलीए। या इंज कह लो, दिल चो निकलीए तो दिल तक पहुंचती है, नहीं तो कन्ना तक पहुंचती है। दिल तो निकली है ताई हिरदे नूं छुएगी, नहीं तो कन्ना नूं छुएगी, वापस आ जाएगी।
दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। पर दिल तो ओही गल निकलदी है दिल जिस तो प्रभावित है, वरना नहीं। जिस तो मैं प्रभावित नहीं हाँ वो मेरे दिल का हिस्सा नहीं है, मेरी याद का हिस्सा नहीं बन सकता। जिस तो मैं प्रभावित ही नहीं है बार बार भुल जावांगा। लोकी परमात्मा नूं याद करते ने पाठ करके, पूजा करके, कीर्तन करके, कथा करके, वाजे वजा के, साज खड़का के, सब कुछ करके। पुत्र नूं याद करना वाजा वजाण दी लोड़ है, मित्र नूं याद करना है कथा करन दी लोड़ है, परिवार नूं याद करना है, धन संपदा नूं याद करना है, फिलसफा घोटण दी लोड़ है? लोड़ ही नहीं है। उसका प्रभाव है मन ते याद आउंदी। बिना वाजियां वजाया धन याद आउंदा है, बिना तबलियां खड़काया परिवार याद आउंदा है, बिना फिलसफा घोटिया मित्र याद आउंदे ने। घोटते रहिए फिलसफा करते रहिए कथा कहानियां, परमात्मा याद का हिस्सा नहीं बनता, उस तो मन प्रभावित ही नहीं। जिस तो मन प्रभावित है दिल उसनों याद करेगा, और जिसनों दिल याद कर रहा है उदी गल फिर दिल तो निकलेगी। अगर दिल तो निकलेगी तो दिल तक पहुंचेगी। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। तो मैं फिर अपने नुकता निगाते आवां। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने केसर वर्गी काया हो गई, केसर लाण की लोड़ ही नहीं रही। कुंगू की काया रतना की ललता, जबान रतना दी खान बन गई है। भाव एक एक बोल जिस तो कई रतन कुर्बान किए जा सकते, बेशुमार रतन कुर्बान किए जा सकते। रतना की ललता अगरवास तन सास, ਉਹਦੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਚੰਦਨ ਦੀ ਮਹਿਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਤਰ ਸੈਂਟ ਉਹਦੇ ਸਵਾਸਾਂ ਚ ਆਉਣਗੇ। ਤਖਤ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ 22-23 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ। ਉੱਥੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਗਮਾਲਾ ਤੱਕ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦਾਸ ਸੀ ਇਹ ਪੰਕਤੀਆਂ ਆਈਆਂ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਵਿੱਚ। तो मैं इन्ना ही आख्या उन्हां दे कर्मां दे च रब्बी महक आउंदी है, सुगंध आउंदी है। ये अर्थ करके अगे चले गए। संत करतार सिंह जी जिन्हां ने पटना साहब की सेवा कराई, हट साहब गुरुद्वारा बनाया, बेबे नानकी का स्थान भी उन्होंने बनाया, बेर साहब की सारी सेवा उन्होंने की। महाराजा रणजीत सिंह तो बाद दोबारा दरबार साहब ते सोना भी उन्होंने लवाया। और डूंगी बड़ी सांझ सी, हर साल अलवर भी समागम ते पहुंचते रहे। कोई 3 साल होए गुजर गए ने, चलाना कर गए। नहीं तो कदी गुरु गोबिंद सिंह जी के गुरपुरब ते वो गैराजरी करते ही नहीं सन, तख्त साहब ते ही आउंदे सन पटना साहब। है मुख्तसर मैं अर्ज करा, वो भी बैठे सन कथा के स्रोतियां। कथा की समाप्ति तो बाद मेरे कमरे च आ गए, कहने लगे मस्कीन जी मेरा दिल बहुत दुख है। मैं क्यों? अगर आवास तन सास तुसी ये क्या है, कर्मां दे सुगंध आ गई, महक आ गई। महाराज जो थे कि अंग का जिक्र पै कर दें, रतना की ललता, जवान रतन हो गई है, काया केसर हो गई है। अगर आवास तन श्वास, श्वास क्या है, कर्म नहीं क्या। उत्थे श्वास पै कहते हैं, श्वासां दे खुशबू आ गई। ये अर्थ मैनू कहन लगे या तो थोड़ा मन नहीं मनता कि श्वासां च खुशबू किस तरह हो सकती है। मनुख चाहता है मेरे मूँह चो खुशबू आवे, बदबू नहीं आनी चाहिए। मनुख चाहता है, और दूजे नूं बहुत बुरा लगता है मूँह च बदबू आउंदी।
ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਗਰ ਆਵਾਜ਼ ਤਨ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਤਨ ਦੇ ਚੋਂ ਜੋ ਸਵਾਸ ਨਿਕਲਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਜੋ ਹਵਾ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ 'ਚ ਸੁਗੰਧ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿਰਦਾ ਇਸ ਅਰਥ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਥ ਆਏ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਹਿਰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਸੀ, ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਗਲਤ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂ, ਸਵਾਸਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗਾਲਬਨ ਮੈਂ ਇਹ 81 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਗਾਲਬਨ 80 ਦੀ ਗੱਲ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ 'ਚ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਦਿਖਾਣਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਥਾਂ ਥਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਥਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਸੁਣਨਾ। ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਸਵਾਸਾਂ 'ਚ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਤੀਜਾ ਨੇਤਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੀਜੀ ਅੱਖ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ 'ਚ ਮਹਿਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਸਨ ਗੰਜ ਡਡਵਾੜਾ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਸਬਾ ਹੈ, ਕੋਈ 40-50 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ, ਔਰ ਇਸ ਕਸਬੇ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ ਏਟਾ, यूपी ਵਿੱਚ। ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਘਟਨਾ ਸਰਵਨ ਕਰਾਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਇਹ ਖਬਰ ਛਪੀ ਸੀ ਫਰੰਟ ਪੇਜ ਤੇ। ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅਖਬਾਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਰੰਜੀਆ ਉਸ ਦਾ ਐਡੀਟਰ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਘਟਨਾ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਹੈਰਾਨ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਫਰੰਟ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰ ਵੀ ਦੇਣੀ ਪਈ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਲਿਖਣਾ ਪਿਆ, ਆਰਟੀਕਲ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਉਸਨੇ ਪੂਰਾ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕੋਈ 70 ਸਾਲ ਦਾ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਤੇ ਗਾਲਬਨ ਕੋਈ 25-26 ਘਰ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਜਰਾਤ, ਜੇਲਮ ਦੇ ਨੇੜੇ ਗੁਜਰਾਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਧਰ ਦੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ। ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ 10-12 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਨਾਂ ਟਿਕਾਣੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸਾਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਤੇੜ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਤਹਿਮਤ ਬਣਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ 2 ਗਜ਼ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਐਵੇਂ ਲਪੇਟ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਬਦਨ ਨੰਗਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਸਰਦੀ ਗਰਮੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਡਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਅਜੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਡਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਆਉਂਦਾ, ਘਰੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਡਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਅਜੇ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ, ਲੰਗਰ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਲਦਾ, ਪਰ ਡਾਲੀ ਦਾ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ। ਉੱਥੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਹਰ ਘਰ 'ਚੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜੋ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਵੰਡਦੇ ਨੇ ਮੁਸਾਫਰਾਂ 'ਚ, ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਟਾਫ ਜਾਂ ਹੋਰ। ਉਹ ਡਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ, ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ, ਰਾਤੀ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਉਹ 2 ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਛਕਦਾ ਸੀ ਉਸੇ ਡਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ। ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਲੋੜਾਂ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਉਸਨੇ ਕਦੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਗੁਮਨਾਮ ਜਿਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੀ ਉਪਸਥਿਤੀ, ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਕਿਸੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਹਾਂ ਇੱਥੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਰੀਬਨ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਦੱਸਣ ਦੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਹਾਂ, ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਹਾਂ। ਉਹਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਜੂਦ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਇੱਥੇ ਹੋਣ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਚੱਲੇ,
उपस्थिति का पता ना चले, मेरी मौजूदगी का पता ना चले। लेकिन एक दिन उसने जबान खोली संगत दे आखन लगे, थोड़ा बहुत धन्यवाद, मैं कल चले जाना। इस संगता ने कहा, क्यों, किसी ने कुछ कह दिता है, क्यों जाते हो, रहो। कहने लगे, सदा ही आ गया तो हुण की रहना, सदा ही आ गया। दो चार ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਾੜੀ ਜਿਹਾ ਸਮਝ ਆਈ। कहने लगे, चले जाना, हाँ संसार तो ही चले जाना। तो फिर सारे मिल के कहने लगे, महाराज फिर थोड़ी देही ਦਾ ਦਾਹ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰੀਏ कि जल प्रवाह करिए। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਅੰਗਮ ਜਾਂ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਡੋਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੰਜ ਡੜਵਾੜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਗੰਗਾ ਲੰਘਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਆਖੋ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦਾਹ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰੀਏ, ਹੁਕਮ ਕਰੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਾ ਦਾਹ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਅੰਦਰੋਂ ਸੋਚਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਬਰ ਬਣਾਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਦਾਹ ਸੰਸਕਾਰ ਆਪ ਕਰਾਂਗਾ। तो पता है कस्बे च चर्चा की फैल गई, कल खुदकशी करेगा, आत्म हत्या करेगा। कहता जो है मैं अपना दाह संस्कार आप करांगा। ते प्रबंधकां ने यह भी कोशिश की थी किधरे गुरुद्वारे ना करे, चिता बना के ते आप ही अपने आप नूं जला गए। ये काम किधरे गुरुद्वारे ना हो जाए। सवेरे सुखमनी साहब का पाठ होया, उतों दियां गुरुद्वारियां दी बहुत सारियां दी मर्यादावां, सवेरे पाठ होंदा है, आसा दीवार का कीर्तन होया, मिल के संगतां करदियां सन। अरदासे तो बाद सारियां नूं फतेह बुला के ना ते महाराज दे अगों लेट गया। बंदा सिर्फ तहमद सी, बदन सारा नंगा, नाभि दे चों अग निकली, उहदी नाप दे विचों। पढ़िया तो मैं सीस नूं योगा अगन कहते हैं, कबीर ने भी जिक्र किया है, ब्रह्म अगन सहजे पर जाली, एके चोट सदाया उत्तराखंड। बर्फानी पहाड़ां च जिहड़े योगी रहिंदे सन ते देख लेंदे सन, अंतिम समा आया है, इसे ही अगन नाल अपना दाह संस्कार करते सन। मैं जो अर्ज कर रहा अत कथनी नहीं, हज़ारां साल पुरानी घटना भी नहीं है, हुणे ही होया 80-81 की घटना है। भारत के सारे पेपरां ने छापी और फ्रंट पेज ते छापी, तस्वीरां दे नाल छापी। खुदकशी करेगा तो करीबन सारी संगत भी इकट्ठी सी और हिंदू वीर भी आ गए भी, तो किते खुदकशी करेगा। पुलिस भी पहुंची सी, यह भी मैं अर्ज करा। एक फोटोग्राफर रब दे नेड़ नाल ही उसकी दुकान सी, तमाशबीन की तरह वह भी आ गया। सारियां दे सामने करिश्माउण लकड़ां इकट्ठियां करे ते रोके कोई, नाभि चों अग निकली और चारों पासे सुगंध फैल गई, खुशबू, अजीबो गरीब खुशबू। और उस अग दा प्रकाश भी अजीबो गरीब, यानी चानना इस तरह जिवें दुध दा रंग होंदा ना चिट्टा, इस रंग दा चानना, दूधिया चानना उस अग्नि नाल। सारा शरीर जल गया, राख भी कोई नहीं, सारा शरीर जल गया, थल्ले दा कारपेट नहीं जले, उसे तरह। ये हुण दी घटना, थोड़े चिर वो खुशबू कोई 3-4 महीने उस अस्थान दे च रही है। ते मैनू संत करतार सिंह लै गए, कोई 13-14 दिन हो गए सन। कहने लगे, सूंघो, कि कोई सेंट नहीं छिड़किया गया, इत्थे कोई फुल नहीं है, इत्थे कोई अतर नहीं छिड़किया गया, आले दुआले कोई अतर फिरोश नहीं है, किसी दुकान ते अतर नहीं बिकता, कोई सेंट नहीं बिकता। ऐ वेख, है की है।
इस हादसे का मैं अखबारां थोड़ा जिहा पढ़िया सी, पर अपनी तर्क बुद्धि करके पढ़ के भी एक पासे सुट दिता सी, चलो हो गई होनी कोई गल। कहने लगे खुशबू की है, किसी का अतर छिड़के होया नहीं है इत्थे, ये की है? मैं किसी का अतर छिड़के होया भी नहीं है, आले दुआले इस तरह के होर कोई साधन भी नहीं, तो एक फिर रब्बी खेड है। कहने लगे हाँ, उसके सुआसां जो खुशबू सी वो पुरुष ही ऐसा सी। कहने लगे मैं आउंदा रहा, उहदे कोल मैं बैठदा सी, मैनू सुगंध आउंदी सी, मैनू महक आउंदी सी, कदी उसने सेंट नहीं लाया, कोई अतर नहीं लाता सी, खुशबू आउंदी सी, महक आउंदी सी। ये संत करतार सिंह ने मैनू दस्सिया। मैनू कहने लगे कुछ गैबी खेडां जो वरतदियां ने, ये अजकल के तार्किक लोगों की तरह इनकार ना करिया कर। इनकार करने वाले ने कह दिता है पत्थरां नूं पंजा लगदा है, इंज भी कहते। मैं उस दिन अर्ज की सी, एक मनुख ते वो है बस बाहरों ही प्रभावित होंदा है, किसी का धन वेखिया प्रभावित होया, किसी का रूप वेखिया प्रभावित होया, किसी ने गाल कढ़ दी प्रभावित होया, किसी ने उपमा कर दी प्रभावित हो गया, किसी ने जस कर दिता है पैर नहीं जमीन ते टिकते, किसी ने निंदा की ढेरी ढा के बैठ गया है, बाहर तो प्रभावित होता। किसी नूं संसारी कहते हैं, दूसरा बाहर तो प्रभावित नहीं होता, कोई गाल कढ़दा है कढ़े ते, कोई उपमा करदा है करे, कोई जस करदा है करे, कोई अपजस करदा है करे, कोई गाल कढ़दा है कढ़े, कोई उपमा करदा है करे। नफा हो गया ठीक, नुकसान हो गया ठीक, बाहर तो प्रभावित नहीं है। नुकसान ने उसनों मायूस नहीं करना, नफे ने उसनों हंकारी नहीं बनाना। ये बाहर तो प्रभावित नहीं है। दूसरा, पहला बाहर तो ही प्रभावित है, संसारी है। दूसरा, इस तरह की किसी भी घटना तो प्रभावित नहीं है। जस हो गया ठीक, अपजस हो गया ठीक, नफा हो गया ठीक, नुकसान हो गया ठीक। अपने विचले इन्हों कहते निर्लेप, ये निर्लेप। ये परिवार दे च निर्लेप है, संसार दे च निर्लेप है, धन संपदा दे च निर्लेप है, पर निर्लेप। तीसरा, हुण ये प्रभावित करन लग पे, हुण ये प्रकृति नूं प्रभावित करदा है, संसार नूं प्रभावित करदा है। सप दा कम है डंग मारना, पर सप गुरु नानक ते छां करदा है। पनीर नाग उहदा ते कम है डंग मारना, वो ते छां करदा है। पत्थर भारी भरकम उहदा ते कम सी चूर चूर कर देना, पर गुरु नानक दा हथ छूंदा है, वो मोम हो जाता। हुण ते पत्थर प्रभावित हो रहे हैं, हुण ते सप प्रभावित हो रहे हैं, जमीन प्रभावित होंदी है, आसमान प्रभावित होंदा। हुण ये दूजे नूं प्रभावित करता है, प्रभावित होंदा नहीं है। एक तीजी श्रेणी। मैनू संत करतार सिंह ने कहा जो तीजी श्रेणी की कथा करता होंदा है ना कदी कदी, ये तीजी श्रेणी का पुरुष, ये दुनिया के प्रभाव हेठ नहीं जीविया और ये निर्लेपता तो भी अगे चला गया सी। लगे इसका मेरे ते इतना प्रभाव कि पटना साहब जांदे होया, तखत साहब जांदे मैं इत्थे रस्ते च रुक के जांदा सी, इहदे कोल 2-4 घंटे बैठ के जांदा सी। इस तरह का पुरुष सी, इस तरह की आत्मा सी। और इस घटना नूं देखण वास्ते एक विवादग्रस्त साधु, जिसकी बड़ी चर्चा हुई पिछे, आचार्य रजनीश, 16-17 दिन उत्थे बैठा रहा सी। उस खुशबू ने उसनों भी प्रभावित किया। कहने लगे योगी सिद्ध हिमालय दे ते करदे सन, और हुण भी ने किधरे किधरे कर दिन गुमराह हो जाती, हिमालय की खबर थले तक आउंदी नहीं। पर एक सिख साधु ने इत्थे कर दिखाया है, ऐसा कीता है, ऐसा उत्तम पुरुष। ये उचेचा उस स्थान के दर्शन करन आया सी और अपनियां कथावां चो जिक्र करदा सी। जगह जगह कथा करन दे इस जगह का जिक्र करदा सी।
गंज डडवाड़ा उस कस्बे का नाम है। गंज डडवाड़ा कासगंज ते इटावे दे एटा दे कोल, इटावा नहीं एटा, जिला एटा। दिल्ली कलकत्ता जिहड़ा हाईवे जीटी रोड है उस दे उत्ते पैंदा है। ये रोड हाईवे ये जीटी एटा तो लंघ के जाता है, गंज डडवाड़े तो लंघ के जाता है। रेलवे लाइन के उत्ते गंज डडवाड़ा नहीं है, पर ये जीटी रोड के उत्ते एक कस्बा है। इत्थे जो है ये घटना घटी। फिर मैनू कुछ दिन उत्थे कथा करन भी मिलिया, और मेरी अपनी जिंदगी का तजर्बा है। कथा करन दा मैनू उत्थे स्वाद आया। मैनू इंज लग्या जिवें कथा बंद गई है। फिर मैनू बाबे बलवंत सिंह दे बोल याद आए, किसे किसे दिन कथा हो जाती है, किसे दिन करनी पैंदी है। जब करनी पैंदी है तो खपना ही पैंदा, और कुछ नहीं, कुछ नहीं। और फिर तो उन्होंने इतना खुलासा किया, किसे किसे दिन पाठ हो जाता है, किसे किसे दिन करना पैंदा। वो जो करना पैंदा वो तो खपना ही है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। किसे किसे दिन नितनेम हो जाता है, किसे दिन करना पैंदा। वो जिहड़ा करना पैंदा वो नितनेम खपना ही है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। उदों तो गल समझ च नहीं आई सी, उस दिन मैनूं समझ च आई। वाकई किसे दिन हो जाता है, जो हो जाता है उसकी बख्शिश है। जो करना पै जाता अपना खपना ही, और कुछ भी नहीं। जो हो जाता है उसकी रहमत है, उसकी बख्शिश है, तो प्रसाद है, तेरी कृपा है, तेरी रहमत है। और जो करना पैंदा है खपना ही है। ते करना की पैंदा है, जिस जिस कर्म नाल मेरा हंकार जुड़ गया है, ਉਹੀ ਉਹੀ कर्म बेरस हो गया। उसे उसे कर्म दे बेरसी पैदा हो गई। मैनू कीते हुए दान तो खेड़ा नहीं मिलिया, ਉਹਦੇ ਚ कुछ ना कुछ मेरा हंकार है। मैनू कीते हुए पाठ तो रस नहीं आया, ਉਹਦੇ ਚ कुछ ना कुछ मेरा हंकार है। मैनू कीते हुए कीर्तन तो सुने हुए कीर्तन दे च रस नहीं आया, ਉਹਦੇ ਚ कुछ ना कुछ मेरा हंकार है। लाजमी है। मैं पढ़ रहा बाणी, मैनू कोई रस नहीं आया, ये मेरा मैं मौजूद है, जे तू नहीं है। जिस दिन मेरा मैं नहीं आता, रस बन जाता है। ये भी मैं अर्ज कर दें। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहते हैं, केवल कर्म भरम सह चीनो, धर्म करम अनरागो। उन्हां कर्मां नाल परमात्मा का चिंतन करते हो जिहड़े कर्म है नहीं भरम। दान भी भरम हो जाएगा अगर अहंकार नाल है। ज्ञान भी भरम है अगर अहंकार है। पूजा पाठ भी भरम है अगर अहंकार है। सेवा भी भरम ही है अगर अहंकार है। धर्म तो उस दिन है जब अहंकार रुखसत हो, वरना भरम है। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे वाक, केवल कर्म भरम से चीनो, धर्म कर्म अनरागो। धार्मिक कर्म की है जो मैं श्रद्धा नाल कीता है, प्यार नाल कीता है। बस 2 मिनट मैं होर लेके समाप्ति करा। संबंध जोड़न वास्ते परिपूर्ण परमात्मा ने मनुख नूं प्रीत दिती है। इस तो बिना संबंध नहीं जुड़ते, रिश्ते नहीं जुड़ते। और ये प्रीत 3 रूप धारण कर जाती है। अपने तो थल्ले दी तरफ जाए तो इनू सने कहते हैं। बच्चियां नाल सने आउंदा। अगर प्रीत थल्ले ना जाए तो बच्चे नूं गोद च लेना बड़ा औखा हो जाएगा। वो बावां पसारदा रह जाएगा, मां पकड़ेगी नहीं। सने ये चाहिए, नहीं तो बच्चे पल भी नहीं सकते, उन्हां दी परवरिश भी नहीं हो सकती। संबंध जुड़ रहे है, स्नेह करके प्रीत स्नेह बन गई है। और ये स्नेह पशुओं दे च भी है, बड़े बड़े खूनखार दरिंदियां दे च भी है। भेड़िया है, शेर नहीं है, बघियाड़ है। और इसे तरीके नाल चीता है, दूजियां दा खून पीण वाले, और अपने बच्चे नूं सीने नाल ला के रखदे। स्नेह है, वरना संबंध नहीं जुड़ता, बच्चे पल भी नहीं सकते। फिर तो शेरां दी नस्ल ही खत्म हो जाए। धन गुरु अमरदास जी महाराज कहते ने, कुर्बान कीता तिसे विटों, जिन मोह मीठा लाया। हे प्रभु, मैं तैथों सदके जाना,
ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਮੋਹ ਦੇ ਚ ਇਤਨੀ ਮਿਠਾਸ ਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਪਲਨੇ ਸਨ, ਕਿਸਨੇ ਪਾਲਨੇ ਸਨ? ਬੱਚਾ ਰੋਂਦਾ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਮਾਂ ਨੇ ਦੁੱਧ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਾਹਾਂ ਪਸਾਰਦਾ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਸੀ ਬੱਚਾ, ਪਿਓ ਨੇ ਚੁੱਕਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਬਾਹਾਂ ਪਸਾਰਦਾ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਪਿਓ ਚੁੱਕੇ ਨਾ, ਉਹ ਰੋਂਦਾ ਰਹਿ ਜਾਏ ਤੇ ਮਾਂ ਦੁੱਧ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਜੀਵੇਗਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗੀ? ਉਹ ਪ੍ਰੀਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਨੇਹ। ਅਗਰ ਮਨੁੱਖ ਸਨੇਹ ਦੇ ਚ ਜੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਪਸ਼ੂਆਂ 'ਚ ਵੀ ਹੈ, ਕੀੜੇ ਮਕੌੜਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਛੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਹੈ, ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਕਿਰਤਿਕ ਹੈ, ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪ੍ਰੀਤ ਜਦ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ। ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਨੇਹ ਦੇ 'ਚ ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਪਿਓ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਹੈ, ਸਨੇਹ। ਔਰ ਬਿਨਾਂ ਸਨੇਹ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੁੜੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰੀਤ ਪ੍ਰੇਮ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਰਾਬਰੀ ਹੋਵੇ। ਸਨੇਹ ਦੀ ਤੇ ਉਪਮਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਉਪਮਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਨੇਹ ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ 'ਚ ਵੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਨੇਹ ਹੈ। ਔਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਇੰਜ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨੀ ਚਾਖਿਆ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਸੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਹੇ ਆਗਾਏ। ਮੈਂ ਜਦ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਲੈਲਾ ਮਜਨੂ ਆਸ਼ਿਕੀ ਚੌ ਚੱਕੀ ਜਾਤੀ, ਮਹੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸੋਹਣੀ ਲੈ ਤਰਦੀ ਰਾਤੀ, ਸੱਸੀ ਪੁੰਨੂ ਦੋਸਤੀ ਉਹ ਜਾਤ ਕੋ ਜਾਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਆਮ ਸ਼ਾਇਰ ਲਿਖੇ ਤੇ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਮ ਕਵੀ ਲਿਖੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਲਿਖਿਆ ਬਥੇਰਿਆਂ ਨੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ, 4-5 ਜਗ੍ਹਾ। ਲੈਲਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ, ਮਜਨੂ ਦਾ ਕਿੱਸਾ, ਸੋਹਣੀ ਦੀ ਉਪਮਾ, ਮਹਿਮਾਲ ਦੀ ਉਪਮਾ, ਸੱਸੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਪੁੰਨੂ ਦੀ ਗੱਲ, ਹੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਰਾਂਝੇ ਦੀ ਗੱਲ। ਔਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਔਰ ਕਵਿਤ ਸਵਈਆਂ 'ਚ ਔਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੈਲਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦਾ ਕੁੱਤਾ, ਮਜਨੂ ਦੇਖ ਲੁਬਾਣਾ। ਇਤਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਕਿ ਲੈਲਾ ਦੇ ਘਰੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਆ ਜਾਏ ਉਸ ਨਾਲ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਹੈ, ਲੈਲਾ ਦੇ ਘਰ ਰੋਜ਼ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੈਲਾ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਕੁੱਤਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਲਾਗਰ ਹੈ, ਬਿਮਾਰ ਹੈ। ਤਰਸ ਖਾ ਕੇ ਲੈਲਾ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਮਜਨੂ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪੈਰੀ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੂਫੀ ਸੰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖਣਾ ਪਿਆ ਇਸ ਬਾਰੇ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸੂਫੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪੈ ਸਗੇ ਬੋਸੀਦਾ ਮਜਨੂ ਹਲਕੇ ਗੋਇਦ ਇੰਚੇ ਸੂਦ। ਬੋਸੀਦਾ ਕੁੱਤਾ ਹੈ, ਬਿਮਾਰ ਕੁੱਤਾ ਹੈ, ਮਜਨੂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ, ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਪਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਪਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਕੜਾ ਵੀ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ, ਕੇਸ ਵੀ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ, ਕਿਰਪਾਨ ਵੀ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੋ ਪਿਆਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ। ਫਿਰ ਕੁੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਵਾਸਤੇ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ। ਕੁੱਤਾ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਪੈਰੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੈ ਸਗੇ ਬੋਸੀਦਾ ਮਜਨੂ ਹਲਕੇ ਗੋਇਦ ਇੰਚੇ ਸੂ। ਦੁਨੀਆ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ? ਇਹ ਤੇ ਕੁੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਬਿਮਾਰ। ਪਤਾ ਹੈ ਮਜਨੂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਇਂ ਸਗੇ ਦਰ ਕੂਏ ਲੈਲਾ ਗਾਹੇ ਗਾਹੇ ਰਫਤਾ ਬਹੁਤ। ਮੈਂ ਐਸਾ ਬਦਕਿਸਮਤ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਲੈਲਾ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਰੋਕਾਂ ਸਨ, ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਸਨ, ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਲੈਲਾ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਉਸਦੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਝੁਕੇ। ਜਿਸ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਹੋਵੇ,
परमात्मा दे घर तक होवे जो दी से गुर सिखड़ा तिस नेव नेव लागों पाए जी। हालात ये हो जाते जिस नाल प्यार है उसदे हर वस्तु नाल हर अंग नाल प्यार पै जाता है। बराबरी जिथे है प्रीत बराबरी दे तल ते आ जाए तो प्रेम बन जाती है। मैं आप दी ज्ञात लई अर्ज करा, नंद लाल भी अछूते नहीं रहे इस तो। उन्होंने दे कोल एक ऐसा शायर आया, कहने लगा मैं अपनी लिखत सुनानी है, लिखिया ने मैं कोई नज़मां। शायर नूं शायर तो दाद मिले उन्होंने रूहानी खुशी होंदी है, दूजे भावें सिरे ला के सुनते हैं उन्होंने रूहानी खुशी नहीं होती। ये भी मैं अर्ज कर दें, कोई संगीतकार जद संगीत की धुन अलापे तो कोई चोटी का संगीतकार उसनों दाद देवे, यकीन जानो उसनों रूहानी खुशी मिलेगी, दूजियां दे रास्ते सिरे लाण नाल कुछ भी नहीं होगा, उन्होंने प्रसन्नता नहीं होती। ये भी मैं अर्ज कर दें, क्योंकि उसनों तो पता ही नहीं ठीक है, रस सिर ते हिला रहा है। मैं देखना कई गुरुद्वारे कहते जी राग च कीर्तन करो, राग की कोई समझ भी कोई नहीं, कहते राग च कीर्तन करो। और जे पुछो बिलावल दे किहड़ियां सुरां लगदियां, किन्नियां तीबर ने, किन्नियां कोमल ने, कुछ भी पता नहीं, कोई ज्ञान नहीं। राग सुनना है जी, साधारण रीत ना कहो, साधारण तो साधारण रीत दे च भी राग है। ये भी मैं अर्ज करते हैं, सत सुरां दे जो गाया जा रहा है राग किसी किसी राग नालों संबंधित है, पर खैर एवें विचकार गल आ गई है। शायर शायर नूं सुना के प्रसन्न होंदा है। कहने लगा नंद लाल जी तुसी महान शायर और गुरु गोबिंद सिंह की प्रसन्नता के पात्र में लिखे, थानू सुनाना है। भाई साहब कहते अच्छा सुना, की लिखे है? कहता लैला मजनू का किस्सा लिखे है, थानू सुनाना है। और सिर्फ एक एक सफ़ा सुनाना है, दो दो नज़मां लैला के संबंध, दो नज़मां मजनू के संबंध। भाई साहब कहते ठीक है सुन दे। सुना, हालांकि ग्रंथ बहुत वड्डा सी। पहले उन्हें दो नज़मां मजनू दियां सुनाइयां, भाई साहब की समाधि लग गई, जुड़ गए। ते फिर वो शायर कहता भाई जी हुण मैं थानू लैला की गल सुनाण लगा। और लैला की गल उसने की सुनानी सी, भाई साहब बोल पे उठे। भाई साहब के अंदरों नज़म निकली है और दीवाने गोया दे दर्ज है। भाई नंद लाल कहते ने मगो अज हाले लैली, लैला की गल हुण मैनू ना सुना, मैं नहीं सुननी। मगो अज हाले लैली बादले शौरीदा ए गोया, कि शराय किस्सा है मजनू मरा दीवाना में साजा। तू मैनू मजनू का किस्सा सुनाया, मैं अपने होश गवा बैठा। जे तू हुण लैला की गल सुनाई, मैं अपनी जान गवा बैठा, मेरे प्राण जाते रहणगे। ना सुना, मैं नहीं सुन सकता। कमाल की गल, मजनू की गल सुन के कोई अपनी सुरत खो देवे ते गुरु नाल जुड़ जावे, अपने होशोवाश खो देवे ते गुरु की गल सुन के भी अंदर जज्बे ना उमड़न। मजनू की गल सुने कोई तो रब नाल जुड़ जाए, ते रब की गल सुन के भी कोई रब नाल ना जुड़े। अवस्था का भेद और की है। मगो अज हाल लैली बादले शौरीदा है गोया, कि शराय किस्सा है मजनू मरा दीवाना में साजत। मैं ते मजनू का किस्सा सुन के पागल हो गया, अपने होश गवा बैठा। हुण तू लैला का किस्सा सुनाया कि जान नहीं रहनी, खामोश हो जा, बस बहुत हो गया। तो मैनू बहुत सुनाया, इतनी ही मेरी ताब सी, इतनी ही मेरी जो है समर्था सी। ये है एक प्यार की दुनिया, इश्क की दुनिया। इसनूं इश्क हकीकी भी कह देंदे ने, इश्क मिजाजी भी कह देंदे ने। इश्क हकीकी परमात्मा नाल, ईश्वर दे नाल एक रिश्ता प्रेम का, इहदे च बराबरी हो जाती है। यह भी मैं अर्ज करदा। मीरां बराबरी दे रही है, बहुत सारे सूफी बराबरी दे रहे हैं। किधरे किधरे जे सिख ना गुरु नूं बराबरी देवे, आखे नहीं तू वड्डा है, फिर भी गुरु सिख नूं बराबरी दे देंगे, तू मेरा ही रूप है।
ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੇਕਾ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰੀਤ अपने तो उच्चे दी तरफ चलाइया है, दिल दिमाग मने नहीं, तू महान है, तो प्रीत शरधा बन जाती है। शरधा जोड़दी है, प्रेम जोड़दा है, स्नेह जोड़दा है। प्रेम नाल कीता करम, स्नेह नाल कीता करम, शरधा नाल करम रस बना देगा। स्नेह नाल दुध पिलाया जा रहा है बच्चे नूं, यकीन जानो एक रस है, मजबूरी च पिलाया जा रहा है, आया भी पिला सकती है, वह भी खिड़ा सकती है बच्चे। पर स्नेह दी मारी हुई मां भी बच्चे नाल खेड रही है ते खिड़ा रही है, मजबूरी दी मारी हुई एक आया भी खिड़ा रही है ते खेड रही है, कि दोवां नूं एक आखोगे? कतई नहीं। स्नेह ने कर्म दे रस पैदा कर दिता है, प्रेम महारस पैदा कर देंदा है, शरदा ਉਹ रस जो बयान तो भी परे है। दाल बनाई है, सब्जी बनाई है, और कई दालां बनाईयां ने, कई सब्जियां बनाईयां ने, नमक एक दे च भी नहीं पाया, सब बेरस, सारियां सब्जियां बेरस, सारियां ही दालां बेरस, एक नमक तो बिना। खीर बनाई है, सेवियां बनाई ना, और काफी पकवान बनाए ने, सिर्फ शक्कर नहीं पाई, सब बेरस। दान प्रेम तो बिना बेरस है, ज्ञान शरदा तो बिना बेरस है, सेवा प्रेम तो बिना फिक्की है, कुछ भी कर्म धार्मिक प्रेम तो बिना सारे ही बेरस है। ये भी मैं अर्ज करते हैं। चलो खाली खंड भी मूँह च पा लईए, मिठास आ जाता है, नहीं सेवियां ते ना सी, नहीं खीर ते ना सी, कल्ला प्रेम भी आनंद बना देता है। जिनी चाखिया प्रेम रस से तिप्त है आगाए। और धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने ते ऐलानिया कह दिता, साच कहो सुन लेहो सवे, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। एक सवैया पातशाह दा बड़ा कीमती है, रोवत रीज परे गुरुदेव तो मुए को रोवत ग्राम की नारी। रो रहा है अपनियां ही कोई लोड़ां लैके, अपनियां ही कामनावां लैके, रोंदा गुरु दे अगों पिया, पर रोंदा पिया अपनी गर्ज नूं मुख रख के, गुरु दी कोई चाहत नहीं। ते सतगुरु कहंदे ने इस तरह दे रोणे दे उत्ते रब रीज पवे तो मूए को रोवत ग्राम की, लोग मुरदियां नूं भी ते रोंदे ही ने, और की। रोवत रीज परे गुरुदेव तो मुए को रोवत ग्राम के नारी। कीर्तन तेजो रीज परे तां कीर कपोत पुकार उचारी। कबूतरां कीर्तन करदियां पईयां ने, कोयलां करदियां पईयां ने, बुलबुलां चहचहा रही, नगमे गा रही। गुस्ताखी माफ। बेरसियां ने सेवियां, ये खीर भी अगर शक्कर नहीं है। सारियां सब्जियां बेरसियां ने, सारियां दालां बेरसियां ने अगर नमक नहीं है। प्रेम तो बिना कीर्तन, प्रेम तो बिना कथा, प्रेम तो बिना पाठ, प्रेम तो बिना मत्था टेकना, प्रेम तो बिना सेवा, प्रेम तो बिना ज्ञान, प्रेम तो बिना दान, सब फिक्का है, कुछ भी नहीं। इस वास्ते लोग थक जाते हैं, बड़ा दान किया कुछ भी नहीं, बड़ा ज्ञान इकट्ठा किया कुछ भी नहीं। रोवत रीज परे गुरुदेव तो मुए को रोवत ग्राम के नारी। कीर्तन ते जो रीज परे तां कीर कपोत पुकार उचारी। नावे दादर मोन सो बिछह बानर बंदर बास बनारी। मेंढक हर वक्त गंगा च नहा रहा है, सारे दरख्त मौनी जी महाराज ने चुप ने, मौन धारण किया है, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ रब मिलता है। मौनी जी महाराज ने, सारे दरख्त मौनी जी महाराज ने। बानर बंदस बास बनारी। सारे बंदर विचारे जंगलों च ही रहिंदे ने, जे जंगल दे च रहण नाल मिले। नावे दादर मौन सो बृछ है, बानर बंदर बास बनारी। प्रीत की रीत की लेस बिना सिख पंडित गावत जावत हारी। बिना प्रेम दे लेस तो, बिना प्रेम तो ये सारे कर्म फिक्के, कुछ भी नहीं।
प्यारे इन बिद मिलन न जाई, मैं किए कर्म अनेका, हार परयो स्वामी के द्वारे, दीजे बुद्ध विवेका। ਹਿਰਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਯਾਦ ਕਰੇ ਤੇ ਮਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ, ਯਾਦ ਹੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਪ੍ਰੇਮ ਹਰ ਕਰਮ ਦੇ ਚ ਰਸ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਵੀ ਰਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਵੀ ਰਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣਾ ਵੀ ਆਨੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਵੀ ਰਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਰਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਬੈਠਣਾ ਵੀ ਆਨੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣਾ ਵੀ ਆਨੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਰ ਕਰਮ ਦੇ ਚ ਰਸ ਹੀ ਰਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਇਹ ਜੋ ਸਮਾਗਮ ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰਚਿਆ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਔਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚਲੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਇਸ ਦੇ ਚ ਰਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਚ ਰਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਦਮ ਦੇ ਚ ਰਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਗਤ ਤੇ ਆਇਆ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਤਨੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਦਾਸ ਨੇ 11:30 ਵਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬ੍ਰਿਜਵਾਟਰ ਦੇ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦਾਸ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਗਿਆਨੀ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਗਿਆਨੀ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹਾਰਦਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ। ਦਾਸ ਨੇ ਬ੍ਰਿਜਵਾਟਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਕੇ 2 ਦਿਨ ਲਈ ਫਿਲਡਲਫੀਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਰਾਤ ਤੇ ਕੱਲ ਤੇ ਫਿਰ ਦਾਸ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇੰਡੀਆ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਿਹਾ। 2-2.5 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾਸ ਦਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ 'ਚ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਜੋ ਹੈ ਦਾਸ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੰਡੀਆ। ਬਾਕੀ 8-9 ਮਹੀਨੇ ਦਾਸ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ। ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਜਦ ਦਿਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਐਸਾ ਹੈ ਔਰ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। 3-3.5 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਦਾਸ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਈ, ਜੂਨ, ਜੁਲਾਈ ਜਾਂ ਕਈ ਦਫਾ ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਪੂਰਾ, ਜਾਂ ਜੂਨ ਨਿਕਲਦੇ हैं कई दफ़ा तो सितंबर तक वापस पहुँच जाइदा। 8 महीने दास भारत ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਬਾਕੀ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਨਦੀ ਨਾਵ ਸੰਜੋਗੀ ਮੇਲੇ ਕਰਾਏ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹੀ, ਆਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਹੋ ਗਈਆਂ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕਾਂ ਲਈ क्षमा ਦੀ ਯਾਚਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਗਿਆਨੀ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਥਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਹੁਣ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਗਿਆਨੀ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਾਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਦਾਸ ਗਿਆਨੀ ਅੱਛਾ ਬੱਚੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਸ ਨੇ 11:30 ਹਾਜ਼ਰੀ भरनी, इस वास्ते थोड़ी जी जल्दी आपको क्षमा दी याचना। फतेह प्रवान करनी। वाहिगुरू जी का खालसा।